So the hobbies that we are going to do in the next 365 days are going to be very penetrative in nature. They are going to make you your most masculine self in nature. एक फेमिनिन एनर्जी बहुत फ्री फ्लोइंग, बहुत लूज, बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन एक मैस्कुलिन एनर्जी का पार्ट ही है भाई डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड होना. अब कौन से है ये हॉबीज एंड व्हाई आर दीज 9 हॉबीज so important for every man to learn and master? Well, I'll tell you all about it, but after the quick show intro. So, my name is Mayank Bhattacharya, gentlemen. ये है Men's Essentials हिंदी. Let's roll the intro. अब यार, before we dive deep into the 9 masculine hobbies, I'll first want you to understand कि भाई why are these 9 hobbies masculine in nature and why should you learn these 9 hobbies going forward. देखो भाई, masculine energy जो होती है ना, masculine energy का form बहुत penetrative होता है, बहुत thrusting होता है, unlike the feminine energy which is a lot more giving, which is a lot more accepting. So the hobbies that we are going to do in the next 365 days are going to be very penetrative in nature. They are going to make you your most masculine self in nature. अब ये सारे हॉबीज़ आसान नहीं होने वाले. इनमें से कुछ कई हॉबीज़ तो भाई सोसाइटी या समाज के थोड़े परे भी होने वाले, बट दैट्स द वेरी रीज़न यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू लर्न इट एज फास्ट एज यू कैन. जिसमें से भाई सबसे पहली हॉबी होगी आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने की. यस जेंटलमैन, you'll have to pick a hobby that will force you to be more self-disciplined, that will force you to wake up early in the morning and be driven by yourself if not by outcomes or goals. अगर आपने 2025 में एक ऐसी हॉबी चुन ली, एक ऐसी हॉबी ढूंढ लिया जो आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए उकसाती है, एक्साइटेड करती है, then you won't have to worry about the self-discipline game any more going forward. वो चाहे आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो towards waking up early or sleeping on time, वो चाहे आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो towards not using social media all the time, वो चाहे आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो about not eating junk food or not eating a lot of processed packaging shit, वो चाहे आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो about not being indulging in things that will ruin your overall healthy living. लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन फोर्स करना बहुत मुश्किल है. ये सेल्फ डिसिप्लिन डंडा मार के सिखाना, अगर आप फौज में नहीं हो, अगर आप एनडीए जैसे अकेडमी में नहीं हो, बहुत बहुत मुश्किल. क्योंकि डिसिप्लिन एज एन एंटिटी जेंटलमैन इज अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट, इज अ वेरी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन, विच देन ऑब्वियसली ब्रिंग्स मी टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक and therefore a masculine hobby you must inculcate, which is the hobby to instill some self-confidence. अब यार ठीक self discipline की तरह even self confidence is a very accountable game. We will need to do something daily, something competent daily that will drive this confident factor in us without fail. क्योंकि जेंटलमैन कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है. अगर मैं आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करा सकता, देन नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, यू विल जस्ट नॉट बी कॉन्फिडेंट. So one very easy way that I can instill this confidence which I have in you is by you taking care of the way you look and the way you present yourself. If you start putting in some effort to your style, your fashion, your grooming and your overall body, आप जब आईने के सामने खुद को देखोगे एक अच्छे कपड़े में, एक अच्छे स्टाइलिश से आउटफिट में, you will start feeling a sense of confidence from within. तो भाई स्टाइल और फैशन का लड़कों के लिए बस एस्थेटिक का मतलब नहीं है. ये स्टाइल, इमेज, फैशन हम लड़कों के लिए बस अच्छा दिखना नहीं है. द रीज़न वी वॉन्ट टू लुक गुड इज़ बिकॉज लुकिंग गुड मेक्स अस फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन वी फील मोर कॉन्फिडेंट we end up doing more riskier things, more adventurous things, more hard-working things that we would not do otherwise. हमारा एक नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल्फ से हम थोड़े हाइटेंड सेंस में आ जाते हैं, क्योंकि हम में वो कॉन्फिडेंस का, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का ऊर्जा जो है वो कल से बढ़ जाता है. दैट इज़ द रीज़न कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक I'll want you to build, and I'll want you to pick a hobby that will build that confident characteristic in you. और इसी ड्रास्टिक चेंज को ताकि सब जन अनुभव करे, मैंने 1-2 ब्रांड बनाई है भाई आपके लिए. टीमी बेसिक्स जिसका ये शर्ट है, जिसका ये सूट है, एंड बॉस्टन शूज़ जिसके भाई शूज़ और बहुत सारे कमाल जैकेट्स आने वाले हैं बहुत जल्द आपके लिए. वी इवन गॉट अ हेयर प्रोडक्ट कंपनी कॉल्ड कैब्स ग्रूमिंग. अगर आपने ट्राई नहीं किया तो भाई दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस रीजंस. मैं अपने बाल बनाता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बाल न बनाए, मैंने अगर अच्छे कपड़े ना पहने, तो भाई मेरे कॉन्फिडेंस में भी थोड़ी कमी महसूस होती है. सो दिस इज़ जस्ट अ टूल. ये आपका स्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग बस एक ज़रिया है आपको अपने कॉन्फिडेंट नेचर में बड़े आसानी से
लाने के लिए, वो चाहे आप सोशल सेटिंग में हो, वो चाहे आपके अलोन खुद के सेटिंग में हो, या फिर किसी और बिजनेस या फॉर्मल इवेंट्स में। अब अगर आप चाहते हो कि मेरा छोटा सा स्टार्टअप आपके इस कॉन्फिडेंस वाले खेल में थोड़ी मदद करे, देन यू कैन गो टू teambasics.com एंड यूज़ द कोड SAFE20 ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिले हमारे शर्ट में, टी शर्ट्स में और जितने भी अपैरल हैं अभी। एंड इन केस यू वांट टू ट्राई आउट आवर कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, जो भाई आपके कॉन्फिडेंट ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंट हेयर स्टाइल के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट हेयर वैक्स है इस देश में, देन यू कैन इवन डू दैट। यू कैन इवन ट्राई कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप एट teambasics.com एंड गेट अ 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड SAVE25 इफ यू वुड प्लीज। अब आगे क्या? वेल, आगे बात आती है आपके इंटेलिजेंस या फिर आपके बुद्धि की, क्योंकि लॉजिक, रीजनिंग और इंटेलिजेंस इज द वेरी एसेंस ऑफ अ मैस्कुलिन माइंड। अगर आपका दिमाग शार्प नहीं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप में बुद्धि की कमी है, देन इट्स जस्ट नॉट वेरी अट्रैक्टिव एंड व्हाई वुड यू वांट टू डू हॉबीज टू डम यू डाउन further. So what are the hobbies that you can do to probably become more intelligent? Well, very easy, very basic hobby. Courses ले लो, किताबें पढ़ लो, रिसर्च करना शुरू करो, या फिर बेस्ट कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि जेंटलमैन, जिस वक्त आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे जो आपसे थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप देखोगे उनका डिसिप्लिन, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी बुद्धि, उनका इंटेलिजेंस आप में भी थोड़े थोड़े तरीके से समाया जा रही है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंड्यूसिव एनर्जी। पांचवा masculine hobby that will inculcate a very strong masculine characteristic in you is the hobby of traveling or living alone. जी हाँ, ये ट्रैवलिंग या फिर अकेले रहने से आप में एक कमाल कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड होता है, जिसका नाम है भाई आपका इंडिपेंडेंस और आपका सर्वाइवल। इस प्रोसेस में आप खाना बनाना सीख जाते हो, आप अकेले रहना सीख जाते हो, आप अकेले ट्रैवल करना सीख जाते हो। क्योंकि यार मैंने बहुत सारे 25, 26, 27 साल के लड़कों को देखा है जो भाई घर से आज तक कभी निकले नहीं, दुनिया कभी देखी नहीं, कभी ट्रेन नहीं पकड़ा, कभी बस नहीं ली, कभी फ्लाइट नहीं लिया। दैट्स जस्ट नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू बी एक्सपोज्ड एज अ मैन। सो इफ यू हैवंट, मेक दिस ईयर a year where you start doing a little something about your independence and survival strategy. Pick a simple hobby, maybe something about you traveling to a farther place, or you start being on your own, or just going a few places by yourself instead of asking your friends or instead of asking your family to be your company. पांचवा काफी underrated लेकिन बहुत ही important masculine characteristic and therefore a masculine hobby, which is the characteristic of competition and leadership, and the hobby being पिकिंग एनी स्पोर्ट्स। जेंटलमैन, हमारे देश में सब चीज़ों के लिए बहुत तगड़ी कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में खुद को कैसे ढांचे, इस कंपटीशन से अपने मेंटल हेल्थ को कैसे सेन रखे, ये हमें स्पोर्ट्स या खेलकूद सिखाती है। कि भाई फील्ड में या कोर्ट में या उस खेल में कॉम्पिटिटिव रहो, लेकिन खेल के बाहर, उस गेम के बाहर आपकी दुनिया अलग है। बी एज फियर्स एंड एज रिबेलियस एंड एज कॉम्पिटिटिव एज यू वॉन्ट इन द गेम, but once you're done with the game, you are done with it for that time, which then will also build some personal leadership qualities. अगर आप खेल कूद कर रहे हो, स्पेशली कोई टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो भाई आप लीडरशिप स्किल भी बहुत सीखते हो उस इवेंट में, एंड दैट इज समथिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम अ मैस्कुलिन पर्सनालिटी। लेकिन भाई छठवा काफ़ी ओवररेटेड लेकिन फिर भी काफ़ी ज़रूरी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बिशन एंड सक्सेस, और अ हॉबी दैट विल मेक यू बी मोर एम्बिशियस and successful in life. Being ambitious in life is very important. So pick a hobby which you really like to pursue or which you are really excited about right now. वो शायद आपको आज पैसा कमा के ना देगी, लेकिन उस ड्राइव, उस एम्बिशन से आप शायद 2 साल बाद कुछ ऐसा बना पाओ जो आपको रातों रात बहुत कमा के देगी. But the moment you let loose of that ambition, the moment you kill your inner drive is the moment it becomes very difficult for you to be motivated or just be full of life. 7वां हॉबी ऑफ 2025 कि भाई जिम जाओ, नहीं तो वेट लिफ्टिंग करो, बॉडी बिल्डिंग करो, पावर लिफ्टिंग करो, नहीं तो भाई कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलो थोड़ी मजबूती और स्ट्रेंथ के लिए, बिकॉज स्ट्रेंथ इज़ द इनेट नेचर ऑफ अ मैस्कुलिन मैन. अगर आप तगड़े नहीं हो, अगर आप फिजिकली बलवान नहीं हो, तो फिर it will become very difficult for you to feel like a masculine man. If you don't like weightlifting, then you can even play some physical contact sport. Anything that will build muscle, anything that will make you physically stronger is a very good hobby to have in your life this year. लेकिन भाई 8वां हॉबी शायद से सबसे controversial hobby in this देश, हमारे society and समाज, is the hobby of sex, girlfriend या फिर social डायनामिक्स. जेंटलमैन, अगर आप एक मर्द हो, forget about you being masculine or not, अगर आप एक मर्द हो और if you are interested in the opposite sex, then the whole process of you wanting to be with that opposite sex, making her your girlfriend,
is a very masculine form of energy. थोड़ा सा आवारापन, थोड़ा सा sexual and social confidence is actually very, very important in every single man's life. The act or the lack thereof is ruining your masculine form on a daily basis. अगर आपको कोई पसंद है तो भाई उससे जाके बात करना is a very masculine thing to have. It's a very masculine characteristic to have. And any hobby that will help you do it is a very masculine hobby. You should inculcate in 2025. अब इस हॉबी में हो सकता है आपका कोल्ड अप्रोच का प्रैक्टिस या फिर कोई सोशल डांस क्लास या फिर जिम में जाके बात करना इज़ अ वेरी हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक टू बिल्ड एंड देयरफॉर अ हेल्दी हॉबी टू पिक इन दिस ईयर ऑफ 2025. लेकिन भाई आखिरी 9th या 10th हॉबी ऑन द लिस्ट इज द हॉबी ऑफ यू गोइंग आउट, लिविंग लाइफ, गेनिंग सम एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्ली बिकमिंग अ होल लॉट मोर वाइजर इन द प्रोसेस. क्योंकि विजडम आपके मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक का एक बहुत ही कमाल ट्रेट है. मुझे याद है मैं एक सदगुरु जी का कॉन्क्लेव सुन रहा था. इट वॉज द ईशा फाउंडेशंस इवेंट एंड वहाँ पे रतन टाटा वॉज वन ऑफ द चीफ गेस्ट. And Sadhguru ji ऐसे हैं कि he is probably the one who will be talking a lot, but for once in that video I saw him being quiet and listening to Ratan Tata speak and give real pearls of wisdom in the world of economics, business and entrepreneurship. Gentlemen, that is what good wisdom can do to your life, that even a man who is as mighty as Sadhguru would shut up and listen because you really talk sense, you really talk from your lived experience and not from some rhetorical shit that you have learned or heard or read about इन बुक्स और पेपर. तो भाई 2025 में अपने इस अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा जगाओ. अगर टाइम मिले तो इन सारे हॉबीज में थोड़ा अपना कीमती समय इन्वेस्ट करो. अगर नहीं तो भाई पिक वन and see yourself changing, see yourself becoming a whole lot more masculine, a whole lot more assertive, a whole lot more dominating by just picking any one of this and mastering it in the next 365 days. पर यार आज के लिए बस इतना ही. If you really want to level up your confidence, gentlemen, if you really want to pick a hobby that will help you level up your confidence this year, then I will highly recommend you work on your style and image. I will highly recommend you go to teaminvestors.com, try out Casual Grooming ka heads up, try out our sexy shirts, linen shirts, cotton shirts, Oxfords and smart casuals. You can just search for shirts and you can see them all. Use the code SAVE20 for 20% discount on our shirts and t-shirts. SAVE25 for a Casual Grooming ka 25% off. अगले वीडियो के टॉपिक बताओ मुझे. I have some fantastic videos lined up that will probably transform your 2025 like you haven't thought, heard or even known of ever before. My name is Mayank Bhattacharya. Thanks a lot for watching. See you in the next one. Jai Hind. Take care. Bye.